Parliamentary debate means debate in which words should not cross their Lakshman Rekha. Unlike debate of parliament. Yes, right. Before starting our word war, I want to call a person जिनका इस प्रोग्राम में हाथ है बहुत ही विशाल. With a huge round of applause, I want to welcome Mr. Vikas. Audience, I want to tell to all of you that we are going to have here the finale of debate. तो थोड़ा सा मैं आप सभी को डिबेट के बारे में बताना चाहता हूँ. स्टार्टिंग में हमने कुछ बच्चों को सम्मानित किया और उसके बाद हमने यहाँ पे बच्चों को फिनाले तक ले जाना है. अगर यूं करते हैं The minimum qualification of a leader. I am Purnima, captain of Team A, Chanakya, and together me and my team strongly disagree with the statement that leaders should be make a leader a good leader. So graduation obviously should not be a minimum qualification of leader, but it is the experience and a progressive mindset of the person that makes them a better leader. I want to add a point that graduation is a degree. It's only a degree and it can't believe Education, then secondary education, then higher education, and then he graduates. During his life journey, there is enough time to gain experience. They are included in various kinds of cultural activities through which they can gain more experience, that they will be able to understand problems. There is a competition and there is a culture. Sorry for interruption. Let me complete. Sorry for interruption. Time should be completed. At a point, we can take the example of Karnataka and Bihar. Karnataka has 11 graduated leaders. In comparison to Bihar, it has 18 graduated leaders. But we can see that Karnataka is not So you have taken your time. Let me complete one thing, that graduation and education are two different things. Graduation means getting diploma in a certain subject, and education is totally different thing. Education means you are applying your learnings in your attitude and your personality. So don't compare graduation and education. Your favorite mindset of a person can make them a bit better leader. If you see in the case of Bihar, CM of the Bihar in 2001 was Rabri Devi. She was not educated. If you will see, she was not educated. So what about the others? 90% of the population. If graduation becomes a minimum qualification, they will get eliminated. A large portion of the person. I want to add a point that graduation eliminates the individuals and the minority section of our country, and we want all of us to join a Sorry policy. for interruption, I disagree. Education and graduation, yes, they are different things. But graduation is a part of education. It is a higher stage of education in which people are educated and they complete their education and then they are graduated. Voting graduation is minimum qualification. You are educating the other Let me complete. As we know, just take an example. Thank you everyone. Thanks a lot for having us such a debate. Thank you. So let our anchor be ready. थोड़ी देर में हम आप सभी के सामने इन बच्चों का रिजल्ट. So we are having some parents here. Let us ask from them what kind of ideology they are giving. तो चलिए सर, हमारे जो भी लीडर्स हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए. सर क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? Because उसके पे डिपेंड है ना आपका डिसीजन है. अच्छा, सर का कहना है सेल्फ डिसीजन है. तो कहीं ना कहीं सर हमारे जो हैं वो टीम ए को सपोर्ट कर, हमारे लीडर्स हैं वो ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए. एनीवन? थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर. तो चलिए दूसरे हमारे बीच में एक और गार्जियन है, उनसे कि सर आपकी तो नीतू तिवारी सर हमारे बीच में है. सर आप यानी सर का भी मानना यही है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो ग्रेजुएट होने चाहिए. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ थैंक यू. वी हैव आवर पेरेंट्स हियर. तो चलिए अब हम अपने एंकर्स को मंच संचालन के लिए
कार्य करते हैं। तुम बहुत देखा, बहुत सुना होगा। आज इस शब्दों के संग्राम में मजा आया। अपना जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करते हैं और उनके लिए किसको बुलाना चाहेंगे? Team Black Dragon, a very typical song which is Airgiri Nandini, Purvi Tree and Aram Hair Fashion. They are the younger-most class of our Avanti Institute and they are performing a difficult song. Please welcome them. Let's welcome a wonderful dance performance by our dragons. बिना माली खूबसूरती नीवी पर जाती है, जब ना हो वहाँ कोई माली। प्लीज इस महफिल की शोभा बढ़ाने के लिए हो जाए जोरों की ताली। प्लीज भाई ऐसे ले ले आओ स्टेज
कैमरा हटा देखो भाई मोबाइल बाद में चलाना और अगर हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इफेक्ट इसका फर्स्ट ये है कि ये मतलब फर्स्ट यही है कि वेस्ट हो रहा है वो हम लोग उसका यूज़ कर लेंगे। आगे जाके हम इसको ट्री का शेप दे सकते हैं। ट्री के शेप पे जो लीफ होती है लीफ की जगह हम ट्री लगाएंगे ताकि जो ये एक बहुत सारी और उसके बाद हम पानी और इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज हो जाएगा। सोलर पैनल है केवल एक लाइट भी चालू होगा, बट ये जो बड़े वाले सोलर पैनल्स आते हैं उसमें लाइट फैन एसी सब चलता है, जैसे कि अभी चल ही रहा है ये वहाँ का लाइट। और यहाँ पे इंडिया में 80% जब हमारी आपको अलग से खर्चा नहीं देना होगा। अगर इस सोलर पैनल आप लगाते हैं तो वो ये कितना तक होता है?
बच्चा कोई ऐसा जिसको स्नैक्स नहीं मिला ऐसा क्या बात है बच्चे इसके जो भी विनर्स हैं या एप्रिशिएशन जिनको मिला है वो सारे लोग हॉल में पहुंच जाइए फटाफट से। चेस, पेंटिंग, बड़ी एंटरप्रेन्योर्स, सारे लोग हॉल में पहुंच जाइए जल्दी से। कैनवास सारे या फिर ब्रेक पे लो जाता तो आता है तो हम लोग एडोनेट प्रिवेंट करने के लिए क्या किया है कि हमने ब्रिज के साइड साइड में ये हमारा स्ट्रीट लाइट मेडिकल गाइडलाइन है। जब भी कोई कार हमारे सही में देखेगा जब ये फर्स्ट स्ट्रीट लाइट पे अल्लाह आंधी लगे तरीके से कार ना करे और लाइट होके ऑफ। पेंटिंग, कैनवास, स्पेल भी
मयंक सुन ना, ये जो पार्टिसिपेट इरिगेशन किया जाता है, इससे पानी की बचत होती है। ऐसी जगह पे हम करते हैं जहाँ पे पानी कम मात्रा में और वहाँ पे इरिगेशन करना which is not available in our state because we doesn't have any connections with any type of coastline. By biofuel fish farming, we can solve this system. You know that our state, Bihar, doesn't have any coastline for fishing in bulk quantity, and the fishes that are cultivated in small ponds are not enough to fulfill our consumption. By biofuel fish farming, we can cultivate large amount of fish in a very small area and can give fresh fishes to everyone. It is the best way of fish cultivation as we can cultivate large amounts of fish in small areas and it is also fresh and we can easily. With highly decreased due to the biofloc technique in which the waste material of food, that means it excretes and it becomes the nitrogen gas in form of bacteria which the fish can eat. 20% cheaper than the market price. We will get no loss because our feeding cost is half. When we sell fish 20% cheaper rate, all the buyers will buy fish from us. Our expected revenue generation for the first year is rupees 8 lakh and our profit will be 5 lakh. For the next 2 years, our goal is that every fish vendor जो लोग मछली बेचते हैं वो हमसे बल्क क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में मछली खरीदे जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़े और हमारा सेकेंड और थर्ड ईयर का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 20 लाख रुपीज है जिसमें हम लोग को ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह सब इंक्रीज करके प्रॉफिट होगा 30 लाख. For the fourth and fifth year, our goal is to increase the production and to import our fishes and neighboring districts. As we increase our production and start, our expected revenue is 35 lakh and profit is approx 18 lakh. Sometimes there will not because of our policies and criteria. Thank you. Thank you everyone. This was a great performance. What do you think? Yes, it was very good. ऐसे ये बॉडी हीटर पीरियड्स है क्या?
But जैसे कि हम लोग जानते हैं कि in this beautiful world, many of the people are suffering from unemployment. So these boys are presenting some of the perfect business idea. Yes, they have. So now, getting ahead, there is another dance performance by the team Shubh Nagara. So with a big Savara Singh, Nidhi and Kajal. One minute, please. The students who are participated in the award ceremony, please be there. After a while, we are going to start the award ceremony. The entrepreneurs, painting and canvas. ये स्वागत करावे I would like to call Apurva Ranjan from 8B1, Naman Kumar from 8, Riddhi Gopal from 12A1, Amitash
third prize goes to Anushka Singh 8B1. Again the third prize goes to Arpit 12th A1 and the second prize from 8th. So ladies and gentlemen, please give a big round of applause to all the finalists. Riddhi Gopal, come forward. Amitesh Bhagwat. Now we have two participants on third position. They are Anushka Singh and Arpit. अनुष्का और अर्पित आप दोनों एक साथ स्टेज पे आएंगे. So ladies and gentlemen, please give a big hands for them as they have worked very hard for their performance. Now the second position goes to Silvi I from 10th B A1. Give a big hands for them. And the first position goes to Ambar Srivastav from 8th. Please give a big hands for them. Thank you sir for Aradhya 9th A2. हम जब आगे जब सकते हैं ना पब्लिक भी था वो देखा था Give a big hand for her. थोड़ा देखा देखिए हम भेजा देखिए सर सर Give a big hand for them as they work very. For the award. Now it's Isha Singh from 11th A1 goes to consolation prize. Khushi Sharma from 9th A2 consolation prize. Riddhi Kumari from 10th B2 consolation prize.
से Give a big round of applause. Give a big hands for them as they worked very hard for their performance. Now the third. Give a big hand for them. And from Claybody. Give a big hand for them as they worked very hard for their performance. हाँ मौत में आवा था Give a big round of applause for them. हाँ हाँ why not? सारे Oh no, please stop. क्यों क्या बनी थी? अच्छी नहीं थी क्या? नहीं, बहुत अच्छी थी. I just don't want our innocent audience to run away. अब पता चला कि तुम्हें first round में क्यों निकाल दिया गया था. हाँ हाँ whatever. तो मेरे जिस राह पे है घर गया अक्सर से होना शायद यही दिल मेरा मुझको मिल जाए क्यों बदला क्या है ये सिलसिला जाऊँ ना
एक तुम्हें चाहने के अलावा और तुमसे होगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है शिवा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोलो दिया जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा भगवान चढ़िया बता दे कैसे मैं जीऊं।
क्वेश्चन नंबर लिखा होगा उस क्वेश्चन नंबर को बोलेंगे, वही क्वेश्चन नंबर आपको डिस्प्ले किया जाएगा और वही क्वेश्चन नंबर आपको आंसर करेंगे, आप करना होगा। तो सबसे पहले टीम शैडो, आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, it was written and directed by Karan Johar. Give your answer in 30 seconds. 18. Question number 18. Which of these pairs of cities and the rivers on which they are situated is incorrect? Cities और river का नाम दिया गया है, कौन गलत है वो आपको बताना है। ऑप्शन है लखनऊ गंगा, कटक महानदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र एंड नासिक गोदावरी। आपके पास बस 15 सेकंड बचा हुआ है। ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर +10। क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। देना पड़ेगा तो यार। यहाँ कोई जीएसटी नहीं है, जीएसटी लगा के जीएसटी नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई। वो कहते हैं ना, जीतना जरूरी नहीं होता, जीतने के लिए कोशिश करते रहना बहुत जरूरी होता है। तो इस जीतने वालों के लिए और उस कोशिश करने वालों के लिए जरा आप लोग तालियां तो बजा दें। इनके लिए मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की
Now I would like to request all. बहुत मेहनत की है। फाइनलिस्ट जो कि आ रहे हैं एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने। So let's give a round of applause for all our contestants. A big change in our society with this. That's great. I hope that's what whatever is that hope is great. That's why we are saying people means what they can think. Lighting of flame is going on. अभी यहाँ कुछ चर्चा हो रही थी तो मेरे मित्रों ने कहा कि नेता जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। मैं कह रहा था भैया मैं तो कभी नेता बना ही नहीं। चुनाव लड़ना और जीतना ये करने के लिए कोई नेता बनना जरूरी थोड़ी होता है। नेता ही चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, किसने बताया? नेता बने बिना भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, जब तक कि आपके मन में भावना हो कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहें। अब केवल अगर चुनाव लड़ना जीतना है तो नेता बनिए, लूटिए, खाइए, रोज लोगों को बेवकूफ बनाइए तो चलता ही रहता है। बाकी लोग कर रहे हैं, मैं थोड़ा हटते हैं। Saurabh sir, please come up on the stage and facilitate our guests. Everyone, please give a round of applause. A round of applause.
श्रोतागण जानते हैं कि हमारा छपरा में 2 ब्रांच चलता है। एक जो हमारा ब्रांच है वो हरिमोहन गली में है और दूसरा हमारा जो ब्रांच है भगवान बाजार में है। तो बच्चे हमारे Thank you sir for giving us your valuable time. हम पर से के हम नाम
किया गया। साल 2020 में लगभग 35 सुसाइड केस हर दिन आने लगे, जबकि 2023 में 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने सुसाइड की। अगर इस दुनिया में सारे इंसान एक जैसे होते तो ये दुनिया बड़ी बोरिंग सी होती। शायद इसीलिए गॉड ने हम सबको एक जैसा नहीं बनाया है। हम सबके पास डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, हर बच्चा यूनिक होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हमारा गलत चाहते हैं, मगर कभी कभी सोसाइटी या रिलेटिव के प्रेशर में आकर वो बच्चों को वो करने पे मजबूर कर देते हैं जिसके लिए वो कभी बने ही नहीं होते हैं। इसकी वजह से
आते हैं वो प्रतियोगिता की तैयारी करने आते हैं और उनके माता पिता को ये अपेक्षा रहती है, एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारे बच्चे IIT, JEE, नीट या इस तरह के परीक्षाओं में अच्छा रिजल्ट देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। एज ए पेरेंट के रूप में मैंने खुद भी महसूस किया है कि जब हम अपने बच्चों को तैयार करा रहे होते हैं हम अपने आप को भी उस तैयारी का हिस्सा मानते हैं और होते भी किया है। और वो सपना जो मैं पूरा नहीं कर पाया था, एक वाइकेरियस प्लेजर पाने के लिए उसके मन में भावना रहती है। मैं तो बड़ा भाग्यशाली था कि मेरे पिता तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर नहीं था और कुछ ईश्वर की कृपा थी कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने के बावजूद पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 3रा रैंक पाया, मेडिकल कॉलेज में 68वां रैंक पाया और IIT JEE में भी 446 रैंक पाया। उस विद्यालय का मैं अकेला आज तक का रिकॉर्ड मेरे नाम से, मेरे पहले कोई IIT गया ना मेरे बाद कोई IIT गया। तो इसे ईश्वरीय कृपा कहेंगे। अब मेरी समझ से कुछ बच्चों के ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है तो आई वॉज द चोजन वन, मुझे ईश्वर ने चुना था और ये बहुत बड़ा बोझ रहा हमारे ऊपर कि जब मुझे मौका मिले आई हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, कुछ ना कुछ मुझे वापस करना पड़ेगा। यही कारण है कि पिछले 10-12 वर्षों से मैं अपने गांव में काम कर रहा हूँ। लेकिन पहले मैं IIT में जाने के बाद ऊपर लोग बिंदास थे, कोई चिंता ही नहीं थी। पास हो गए तो बड़ी बात है, उसी पे घर में खुशी मिलती थी। फर्स्ट डिवीजन लेके आए तो लड्डू पट गया। IIT चले गए तुमको ITI या IIT को फर्क ही नहीं मालूम था। तो घर में झगड़ा होने लगा कि डॉक्टर ये पढ़ेगा चाहिए। हमने कहा हमसे एक काकरोच और चूहा तो काट नहीं पाता हूँ बायोलॉजिकल लैब में, मैं क्या डॉक्टर बनूंगा, बड़ा गंदा डॉक्टर बनूंगा। लेकिन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स मुझे समझ में आती है, इसलिए मैं IIT नहीं छोड़ने वाला। मैं वहां जाऊँ, वहां जाने के बाद महसूस हुआ कि जिसके लिए हम इतना खटते हैं वहां जाने के बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। फर्स्ट ईयर में क्योंकि ग्रुप में था, एक मोमेंटम बना हुआ था, तो फर्स्ट ईयर में मैंने टॉप किया, लेकिन पाया कि टॉप करने वाले उतना इज्जत नहीं पाते वहां। IIT में इज्जत उनकी होती है जिनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अच्छी होती है, जो अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, अच्छे स्विमर हैं, अच्छा नाटक करते हैं, अच्छा गा लेते हैं, वही वहां पे स्टार होते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे स्टार बनना है। पढ़ाई तो हो गई, मैं IIT आ गया, मैंने दिखा दिया कि मैं भी IIT आने के लायक था, डिग्री तो यहाँ लेकर जाऊंगा, इतना तो पढ़ी। अब मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि हमारे जितने टॉपर्स थे आज दुखी हैं। मेरे डिपार्टमेंट का टॉपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1985 पास आउट, फिर से डेलावेयर स्टेट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर किया और कैलटेक से उसने PhD किया और दुनिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT को उसने 3 साल पढ़ाया। अब तो पाया कि मैं पता नहीं क्या कर रहा था अभी तक, पता नहीं क्या कर रहा था अभी तक, क्योंकि उसकी रुचि मेडिकल साइंस में थी। लेकिन क्योंकि वो अमेरिका में था तो उसने दोबारा पढ़ने की कोशिश की और डॉक्टर बना। आज फ्रेस्को कैलिफोर्निया में एक हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट है और रोज कम से कम 10 नी और हाई क्या कहते हैं हिप रिप्लेसमेंट करता है। मैं उसका गया, मिल क्या है, बड़ा खुश है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कभी कभी खुद का भी और अधिकांश में आज के मेरे माता पिता के ड्रीम को पूरा करने के लिए हम वो नहीं करते जो हम करना चाहते हैं, या बच्चे वो नहीं करते जो करना चाहते हैं। उसको कहते हैं वैसी स्थिति बनी। इतने ज्यादा अवसर हैं, हर फील्ड में अवसर है। इसलिए बच्चों पर अंडू प्रेशर, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप अपने सपने उन पर न थोपें। मैंने ऐसा किया जब मेरे बच्चे हुए, पहले 2 बेटियां फिर 2 बेटे, जब वो एक उम्र को आने लगे जिसको टीनेज कहते हैं, तो मैं बिठा कर पूछा कि बेटे तुम बनना क्या चाहते हो?
मैंने ये भी देखा कि उनकी रुचि किसमें है, किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं। I never impose my wish on them. मेरे दो बेटियों ने काफी अच्छा किया, but they did not go to IIT. उन्होंने कॉमर्स से पढ़ाई की, MBA किया, CFA किया, और एक लंदन में और एक ऑरलैंडो में जाकर नौकरी किया अमेरिका। 6-7 साल काम करने के बाद जब वो मातृत्व को प्राप्त किया उन्होंने, तो कहा कि मैं बच्चों को पालूंगी। They come back to कोलकाता and they are looking after their children. दो बेटों में बड़ा बेटा बहुत होना, जिसके साइंस की समझ क्या है, मैथमेटिक्स की समझ थी, उतनी समझ मुझे भी नहीं थी। मैं जानता था कि IIT मटेरियल है, लेकिन उसका दिल लग गया था कंप्यूटर में। वो जमाना वैसा था, अर्ली 2000। उसने कहा पापा मुझे IIT में जाकर कंप्यूटर मिलना नहीं है, अब मुझे करना कंप्यूटर है, मैं छोड़ दीजिए, रास्ता निकालूंगा। और उस लड़के ने 25 मैं देखना चाह रहा था कि वहां जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि चैलेंज योरसेल्फ। Since you come to monthly classes and your parents are spending money on you, it is your responsibility, it is upon you to prove that your parents have reposed faith in the right person. इसलिए नहीं कि कुमकुम की तरह जैसे दिखाया कि अगर सफलता नहीं मिली तो माँ बाप थप्पड़ मारे और समाज के लोग आपको तिरस्कार के जैसे देखें और आपको फोर्स करें इस दुनिया को छोड़ने के। बिल्कुल नहीं, ये जितने सुसाइड हो रहे हैं, मैं देखा हूं, मैंने आइट में देखा है। हर साल हमारे हॉस्टल में बड़े सुसाइड होता था, पेरेंट्स के प्रेशर में। जब स्कूल में थे तो टॉप करते थे, कम से कम टॉप 5 में तो होते ही थे, और वहां तो थे रवि सोल्जर्स द बेस्ट इन इंडिया। पॉसिबल नहीं था कि टॉप करें, टॉप तो कोई एक ही करेगा, और जितने क्लास में बैठे सब के सब टॉप पढ़े। तो जब टॉप नहीं गए तो घर में उनकी गारंटी होने लगी, और कईयों ने वहां सुसाइड किया, मैं देखा है। Thank you everyone. आपका सौभाग्य है कि आपके बीच एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने खासकर नौजवानों को बहुत ऊर्जा दी है। वो अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषक हैं, फिल्म समीक्षक हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। विद्यार्थी जीवन में हम लोग साथ रहे और आज आपके बीच है। क्योंकि संयोग से जलालपुर में राज्यपाल का एक कार्यक्रम था जिसमें वो दिल्ली से चल के आए थे। मनोज भाऊ जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, कुछ जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत है। हेलो। मैं इन्हीं की पंक्तियों से अपनी वाणी को प्रारंभ करना चाहूंगा। इन्होंने कई गजल लिखे हैं, ये फिल्म समीक्षक हैं, इनकी कई पुस्तकें आई हैं। एक पुस्तक है तस्वीर जिंदगी की, मुझे लगता है कि तमाम अभिभावकों को पढ़ना चाहिए। तस्वीर जिंदगी की, जिसकी एक पंक्ति है भोजपुरी में कि गोदी से लेके डोली, डोली से लेके अर्थी, गोदी से लेके डोली, डोली से लेके अर्थी, अपने में बात समूचा तस्वीर जिंदगी की। जिंदगी की तस्वीर जो है वो सही मायने में यही 3 पीढ़ियां, यानी जन्म से लेके मरण तक, जन्म से लेके मरण तक हम अभिभावक बच्चों से बहुत डायरेक्शन में आपको भेजा जाता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने इन्हें देखा है, इन्हें पटना से लेकर गया तक, बेगूसराय तक और आरा तक मैंने देखा है, अवंती क्लासेस को देखा है, सौरभ जी को देखा है। विश्वास मानिए कि पूरे पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा विश्वास आपको मानने की जरूरत है। आपने देखा होगा, देखे होंगे इनके मोनोग्राम में एक के ऊपर तीर लगा है, यानी कि ये आपको आगे बढ़ने के लिए, एग्रेसिव होने के लिए कहते तो जरूर है, लेकिन तीर के साथ, तीर मतलब एक डायरेक्शन के साथ, यानी कि अवंती क्लासेस में अगर आप हैं तो विश्वास मानिए कि आप और आपके बच्चे एक निश्चित डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और विश्वास मानिए कि जब निश्चित तौर से एक निश्चित डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे तो सफलता आज नहीं तो कल निश्चित तौर से मिलेगी। मायूस नहीं हुई, शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नहीं हुई, शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते
रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, राह पे चलते रहिए, सफलता तो मिलेगी। और जो लोग सफल हो गए हैं, Students who are standing here and there, be seated at table. Be seated. কোনো দিকত নাই।
हाँ बैटरी डाउन हो गया गाँव में कर बैटरी डाउन So there is a message for all the students who participated in the science exhibition. जिनका भी मॉडल है वो मॉडल अपने साथ लेके जाएंगे, कोई भी यहाँ पे छोड़ के अपना मॉडल नहीं जाएगा। राकेश सर कैंडी ज्वाइन है। राकेश सर कैंडी आप आ जाएंगे यहाँ पे सर। कृष्णा सर आप आ जाएंगे। सब सम्राट सर भी Thank you all. Aditi Kumari from 9A2, Sneha Shira from 9A2. चपरासी और अंदर हम मेडल Now again repeating the name of the appreciation student in waste recycle model. Aditi Kumari 9A2, Sneha Shira 9A2, Alisa Sen 8B1, Saprishi 9A1, Kritika Trivedi 8, Vaishnavi 810 B1, Yatharth Prasad 9A2, Khushi Raj 11A2, Akansha Singh 11A2, Utsav Raj from 11A1, Choti Kumari from कृष्णा सर 11A1. कैंडी ज्वाइन And Mani Soni from 11 table. Please come on the stage, the third scorer of the waste recycle model. I'm requesting Samrat Subal sir and Krishna sir kindly join the students. I'm requesting Vishal Bhavat sir kindly come on the stage. Vishal Bhavat sir. अच्छा तारा ना जब से दिल तबे से हम पूछा Abhinav from 9A1. I'm requesting Nandlal sir from the Ara Center. Kindly come on the stage, Nandlal sir. सर आप जहाँ कहीं भी हैं मंच पर आ जाएंगे। After having this award ceremony, I am requesting to all our volunteers. They have done a tremendous work. They have to also come here. We are eager for having a pic all of you. At the last, we will call the volunteers. Last में हम स्वयं आप सभी को बुलाएंगे. Now it's time for the As they are winner, apart from them, they have done a tremendous work here. So, requesting to all the guardians a big round of applause for all of them here. Now we'd like to call Prince Raj Singh from 10th A1 for the consolation prize of Tech Video. So the winners of canvas paintings are
Aditi want to say something.